السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاستی اسمبلی و کونسل کا پیر سے آغاز، نفرت انگیز بیانات کے خلاف قانون کا امکان۔ کسانوں، باشندوں کے مسائل کو پیش کرنے اپوزیشن کی تحریکات، KCR بھی ہوں گے شریک۔ کانگریس یوم تاسیس، گاندھی بھون میں تقریب کا اہتمام۔ منریگا کو ختم کرنے، گاندھی جی کے نام کو ہٹانے کے خلاف عوامی تحریک کا اعلان۔ پچیاسویں کل ہند صنعتی نمائش کا 1 جنوری کو شام 5 بجے ہوگا آغاز۔ صنعت، تجارت، معیشت و حیدرآبادی تہذیب کا خاص نمائش میں 1000 سے زائد اسٹالز، سخت حفاظتی انتظامات۔ ریاستی وزیر سیدر بابو کی پریس کانفرنس۔ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کو ضابطے کی تکمیل تک محدود نہ کیا جائے، عوامی مسائل زیر بحث لائیں، BJP کا مطالبہ۔ اور رات کے اوقات میں گھومنے، چبوتروں پر بیٹھ کر وقت گزاری کرنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن، پان شاپس، ریسٹورنٹس کی بھی تلاشی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی و کونسل
کے سرمائی اجلاس کا پیر 29 دسمبر سے آغاز ہوگا۔ اس اجلاس کو منظم طور پر چلانے اسپیکر پرساد کمار اور صدر نشین کونسل گٹا سکھیندر ریڈی نے مختلف اجلاس منعقد کیے۔ اعلیٰ پولیس و سول عہدیداروں کے ساتھ علیحدہ اجلاس منعقد کیے گئے۔ کونسل اجلاس کے لیے اسمبلی کے قدیم ایوان کی تزئین نو کی گئی ہے۔ یہ اجلاس جوبلی ہال سے متصل کونسل کے ایوان کے بجائے دورے آصف جاہی کی پرشکوہ ایوان میں منعقد ہوں گے۔ اس طرح اسمبلی و کونسل کے ایوان ایک ہی کمپلیکس کے حدود میں منعقد ہوں گے۔ پنچایت راج انتخابات، جوبلی ہلز اسمبلی ضمنی انتخاب میں کانگریس کی نمایاں کامیابی کے بعد یہ اجلاس منعقد ہو رہے ہیں۔ شمال کی ریاستوں میں ہو رہے مذہبی منافرت کے واقعات اور نفرت انگیز بیانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکومت نے اسمبلی میں انسداد نفرت انگیز بیانات قانون پیش کرنے کا اعلان کیا۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے کامیاب انعقاد سے اسمبلی کو واقف کروایا جائے گا۔ اس اجلاس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لیا جا سکتا ہے کہ قائد اپوزیشن و سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اس میں شرکت کا اعلان کیا ہے۔ جہاں تک BRS پارٹی کی حکمت عملی کا سوال ہے، کارگزار صدر KT راما راؤ کی قیادت میں پارٹی کے ارکان کو مختلف موضوعات دیے گئے ہیں۔ کسانوں، باشندوں کے مسائل پر پارٹی نے زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ BRS سے معطل کردہ رکن و ڈاکٹر KCR کے کویتا کی اس اجلاس میں شرکت کا امکان ہے۔ وزارت کے عہدے پر فائز وزیر محمد اظہر الدین، جو مقننہ کے کسی ایوان کے رکن نہیں ہیں، بحیثیت وزیر اس اجلاس میں شرکت کرنے کے مجاز ہیں اور وہ دونوں ایوانوں کے اجلاس میں وقفے سے شرکت کریں گے۔ BJP کی عوامی مسائل سے زیادہ وندے ماترم کے موضوع پر توجہ مرکوز ہے۔ وہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شہر کی ترقی، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی حلقہ بندی، وقف بورڈ، اقلیتی اداروں کو فنڈز کی کمی، مدینہ منورہ بس حادثہ اور دیگر موضوعات کو اٹھائے جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے 141ویں یوم تاسیس کے موقع پر گاندھی بھون میں پارٹی پرچم لہرایا گیا اور مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر پارٹی صدر مہیش کمار گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے قدیم سیاسی جماعت کانگریس ہے۔ کانگریس پارٹی بے شمار عظیم شخصیات کے عزم و حوصلے سے قائم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد اور ملک کی تعمیر میں کانگریس پارٹی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کے سامنے اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کر حکومت کرنے والے لیڈر آخر کتنے ہیں؟ اگر نہرو وزیر اعظم نہ بنتے تو اس ملک کا کیا حال ہوتا؟ اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ان کے ادا کیے گئے کردار کی بدولت ہی ملک اس مقام تک پہنچا۔ سوئی تک نہ بنا سکنے کی حالت سے لے کر راکٹ لانچ تک اگر ملک نے ترقی کی ہے تو یہ سب نہرو کی رکھی ہوئی بنیادوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے لیے اندرا گاندھی کا نام ہی خوف کی علامت تھا، لیکن آج مودی پاکستان سے ڈر رہے ہیں۔ ملک کو عوام کے ہاتھوں میں دینے کے لیے بینکوں کو خومیانے والی اندرا گاندھی ہوں یا ملک میں ٹیکنالوجی متعارف کرانے والے راجیو گاندھی، یہ سب انہی کے کارنامے ہیں۔ اپنی معاشی اصلاحات کے ذریعے PV نرسمہا راؤ نے ملک کو ایک نئی سطح پر پہنچایا۔ آج مودی گاندھی کا نام مٹا کر اس نام سے چلنے والی اسکیموں کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ آئین کو کمزور کر کے جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کو فائدہ پہنچانے والی پالیسیوں کے سوا مودی حکومت عوام کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہی ہے۔ ریاست میں تاریخی ذات پر مبنی سروے کیا گیا۔ تمام طبقات کو مناسب فائدہ پہنچانے کے مقصد سے ہی یہ ذات پات کا سروے کیا گیا۔ جب BC طبقات کو 42% ریزرویشن نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو BJP رکاوٹ بن رہی ہے۔ ریاست میں BJP کی پالیسیوں کا ساتھ BRS دے رہی ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر، محمد اظہر الدین اور وویک وینکٹ سوامی نے کانگریس کے یوم تاسیس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک آزادی اور آزادی کے بعد ملک کو معاشی، زرعی، سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں کھڑا کرنے کا صحرا
कांग्रेस के सर जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, जिसका आज़ादी की तहरीक में कोई रोल नहीं, वो कांग्रेस के कारनामों को ख़त्म करने के दर पे है। उन्होंने मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने बीजेपी हुकूमत के हालिया कानून की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये स्कीम जो देही रोजगार ज़ामिन है, ख़त्म कर दी गई। इस स्कीम से महात्मा गांधी के नाम को हटाया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हुकूमत के इस कानून के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मनरेगा के खात्मे के खिलाफ कांग्रेस की तहरीक में जोश खरोश के साथ शामिल हो जाएं। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम और नज़्म ज़ब्त की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि एक मुस्तहकम बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बांग्लादेश में हालिया दिनों में पेश आए कत्ल के 2 वाक़यात, जिसमें दीपू चंद्र दास और कुंदन नामी शख्स की मौत वाक़ हुई थी, की मज़म्मत की और उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से उम्मीद ज़ाहिर की कि वो इस तरह के वाक़यात का तदारुक करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 2 करोड़ से ज़्यादा अक़लियतें हैं। उन्होंने मुल्क में कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के नालंदा में अतहर हुसैन नामी एक शख्स को अजियतें देकर हलाक किया गया। उत्तराखंड में त्रिपुरा के कबायली को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उड़ीसा के संबल में मगरब बंगाल के जियोल शेख को भी हलाक किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात नज़्म ज़ब्त की खराबी की वजह से होते हैं, इसका तदारुक ज़रूरी है। बैरिस्टर ओवैसी, जो वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी के रुकन भी हैं, ने हुकूमत हिंद पर जोर दिया कि वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुक़ात को बिगड़ने न दें, इसलिए कि ISI और चाइना इसका फ़ायदा उठाते हुए मसाइल खड़े कर सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश जो बना वो बना था सेकुलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है, और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुक़ात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं, बस साथ ही साथ हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल के एक लेबर को, जिसका नाम जोएल शेख था, उड़ीसा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई, जो त्रिपुरा का एक ट्राइबल है। फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अतहर हुसैन को उसके कान को, उंगलियों को, पैर को काट दिया गया, जिसम में एक रॉड को अंदर डाल दिया गया। तो ये तमाम इस बात को बताते हैं कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होगा और वहाँ पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी, तो फिर ये वाक़यात होते हैं। तो हम अपनी पार्टी की जानिब से दीपू चंद्र दास और अमृत मुंडाल की जो उनकी लिंचिंग हुई उसकी मज़म्मत करते और उम्मीद करते कि हमारे ताल्लुक़ात बांग्लादेश से और ख़राब ना हो, और जो भारत सरकार कोशिशें कर रही है हम उसको सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में ताल्लुक़ात को अच्छा रखने के लिए। बीजेपी LP फ्लोर लीडर A महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि माजी में भी सरमाई असम्बली इजलास
महज एक दिन तक महदूद रखना कांग्रेस हुकूमत की नाकामी का सबूत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्लिमानी रिवायात को नजरअंदाज किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहस के लिए कई अहम मौज़ूआत मौजूद हैं। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने 420 इंतखाबी वादों को पसे पुश्त डाल दिया है और बेरोजगारी अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा है। तरक्की को नजरअंदाज करके रेवंत रेड्डी हुकूमत HILT पॉलिसी जैसे घोटालों में मुलविस है। उन्होंने सवाल किया कि आया हुकूमत HILT पॉलिसी पर असेंबली में बहस के लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने SC, ST और BC रिजर्वेशन पर हुकूमत की नीयत और हिम्मत पर भी सवाल उठाया। धरानी पर इल्जामात के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई न होने का इल्जाम लगाया। नए स्कीमों में कमीशन खोरी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयात की किल्लत, अवामी दरबार में दरख्वास्तों के हल की तफसीलात न देने पर भी उन्होंने एतराज़ किया। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत की माली हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मौजूदा शहर की तरक्की मुमकिन न होने के बावजूद हुकूमत फ्यूचर सिटी की बात कर रही है, जो सिर्फ ज़मीनों की फरोख्त के लिए मनसूबाबंदी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि होम और एजुकेशन के महकमे वज़ीर आला के पास रखकर उन्हें मफलूज किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजिमीन को पेंशन और मराहत न मिलने की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की और गरीबों की फलाह के लिए PGR की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। PGR की 18वीं बरसी के मौके पर KTR ने शानदार क़िराज पेश किया। KTR ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए अवामी रहनुमा P जनार्दन रेड्डी PJR की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। KTR ने कहा कि PJR एक दिलेर, बेबाक और खालिस अवामी लीडर थे, जिन्होंने गुज़िश्ता 50 बरसों में हैदराबाद की सियासत पर अपनी अनमिट छाप छोड़ी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत में रहते हुए भी PJR ने अवामी मफादात के लिए अपनी ही हुकूमत से सवाल करने की जुरात दिखाई। खास तौर पर कृष्णा का पानी लाकर हैदराबाद की प्यास बुझाने के नारे के साथ उनकी जदोजहद तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी। KTR ने जज्बाती अंदाज में कहा कि अगर PJR आज जिंदा होते और तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद वज़ीर आला KCR की क़यादत में होने वाली शानदार तरक्की और फलाही स्कीमों को देखते तो उनका दिल खुशी से भर जाता। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के बारे में PJR का जो विजन था, इसे BRS हुकूमत ने अमली जामा पहनाया है। उन्होंने मुस्तक़बिल की नस्ल के कायदीन से अपील की कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, अवामी खिदमत में PJR की लगन, दियानत और संजीदगी को मशाल राह बनाएं। KTR ने कहा कि अवामी खिदमत करते हुए दुनिया से रुखसत होना PJR की खुशनसीबी थी। KTR ने PJR के फर्जंद और साबिक़ रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी की भी सताइश की और कहा कि वो अपने वालिद के नज़रियात को मौसर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जुबली हिल्स में पेद्दम्मा मंदिर की तरक्की PJR के ख्यालात और अक़ीदतमंदों के जज्बात का एहतराम करते हुए की जा रही है, तो दूसरी जानिब हैदराबाद के अवामी मफाद में विष्णुवर्धन रेड्डी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वालिद के लिए सबसे बड़ा ख़िराज अक़ीदत यही होता है कि औलाद उसके नज़रियात को आगे बढ़ाए, और इसमें विष्णुवर्धन रेड्डी कामयाब रहे हैं। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़रा मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान असम्बली M गोपाल, कॉरपोरेटर्स और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की और अवामी रहनुमा PJR को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। 85वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का 1 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे आगाज होगा। नए वज़ीर आला तेलंगाना भट्टे विक्रमार्का मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर इमारत व शवारे कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी मेहमान एजाज़ी होंगे। नुमाइश सोसाइटी के सदर और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें D श्रीधर बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई। 15 फरवरी तक जारी रहने वाली ये नुमाइश सनत व हिरफत, तिजारत व मईशत और हैदराबादी तहजीब की अक्कासी करती है। उन्होंने बताया कि इस नुमाइश में 1050 स्टॉल्स होंगे। 20 फुट स्टॉल्स के अलावा फनकारों, मैन्युफैक्चरों के भी स्टॉल्स होंगे। नुमाइश में दाखिला 4 बजे शाम से 10:30 बजे शब तक होगा। तातीलात में वक्त बढ़कर 11 बजे शब किया जाता है। दाखिला टिकट 50 रुपये फीकस होगा। 5 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिला मुफ्त होगा। 120 कैमरों के साथ CCTV की निगरानी होगी।
320 वॉलंटियर्स मुतय्यन होंगे। फायर सेफ्टी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात और इदारों के भी स्टॉल्स होंगे। मेट्रो रेल के औकात में इजाफे के साथ सर्विस का ऐलान किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आरटीसी की बसें नुमाइश के लिए चलाई जाएंगी। नुमाइश के अतराफ अकनाफ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की मुफ्त पार्किंग का नज्म रहेगा। इसके अलावा नामपल्ली रोड पर खुदकार मल्टी लेवल पेड पार्किंग भी होगी। नुमाइश के तारीखी पस मंजर को पेश करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि गुज़िश्ता 85 सालों से नुमाइश का एहतमाम अज खुद एक तारीख है। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से तालीम, तिब और दीगर समाजी खिदमात का उन्होंने तस्करा किया। मीडिया कॉन्फ्रेंस में नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर आर सुकेश रेड्डी, एजाजी सेक्रेटरी BN राजेश्वर और दीगर अरकान भी मौजूद थे। कहीं भी जो संदर्श करते हैं एग्जीबिशन सोसाइटी का, उन लोगों को किसी तरह तकलीफ नहीं होना और स्टॉल्स का एग्जीबिटर को भी किसी तरह तकलीफ नहीं होना। कैसा करना, किस तरह मैनेजमेंट करना, जो सोसाइटी की हमारे मैनेजमेंट कमेटी और हमारे मेंबर्स के साथ एग्जीबिटर्स को भी मैं अपील करना चाहता हूं, उन लोगों का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, उन लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए। उसके साथ भी जो संदर्श करने के लिए हमारे भाई लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं, उन लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए। सब मिलके ये एग्जीबिशन को पूरी तरह सक्सेस करने के लिए आप सब लोगों का मदद चाहिए। खैरताबाद चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन और अवामी रहनुमा P जनार्दन रेड्डी की 18वीं बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश करते हुए PCC चीफ महेश कुमार गौड़, वज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कॉरपोरेटर विजय रेड्डी और दीगर अहम कायदीन ने फूल डाले। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि PJR की 18वीं बरसी के मौके पर हम उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश करते हैं। हैदराबाद के अवाम की प्यास बुझाने के लिए कृष्णा और गोदावरी के पानी की मुंतकली में PJR की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर की हैसियत से जायजा इजलासों में जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में उनकी खिदमात और हैदराबाद के पीने के पानी के मसले में उनके किरदार को हम याद करते हैं। पोतिरेड्डी पाडू की लूटमार की उन्होंने एक तेलंगाना तहरीक-ए-कार की हैसियत से मुखालिफत की। कांग्रेस पार्टी के कारकुन और मजदूर रहनुमा के तौर पर उन्होंने बेशुमार खिदमात अंजाम दी। शहर में झोंपड़ियों के क़याम में जहां काका गुडसेल वेंकट स्वामी ने अहम किरदार अदा किया, वहीं मुतादिद बस्तियों के क़याम में PJR का किरदार भी नाकाबिले फरामोश है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कोह मौला अली में विलादत बासादत हज़रत अली करमल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी गईं। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने मीडिया को बताया कि वहाँ लाइटिंग, मोबाइल, टॉयलेट्स, आगपाशी, सफाई, मेंटेनेंस के अलावा दीगर सहूलतों के काम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि 12 रजब से 17 रजब तक अंदरून बैरून मुल्क से ज़ायरीन यहाँ पहुँचेंगे। शहर की खदीम फलाही तंजीम अंजुमन फलाह मुआशरा के ज़ेर एहतमाम हस्ब रिवायत मुस्तहक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया है। याकूतपुरा के सईद विल्ला फंक्शन हॉल में मुनक्किदा 8 जोड़ों के निकाह की मुतबर्रिक महफिल में तंजीम के ज़िम्मेदार रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डॉक्टर मुश्ताक अहमद और उनकी टीम के अलावा रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज, अराकीन बलदिया अब्दुल वासे और शिफात अली ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि 1990 में कायम की गई इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम ताहाल 800 शादियां करवाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अंजुमन फलाह मुआशरा की जानिब से जोड़ों को फीकस 50,000 रुपये मालियती साजो सामान भी दिया गया। बल्लागुड़ा के इलाके में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर पान शॉप्स की सख्ती से जांच की गई। इस मौके पर ACP चंद्रायन गुट्टा पुलिस की क़यादत में मुहिम चलाई गई,
इंस्पेक्टर बंडलागुड़ा पुलिस ने बताया कि पान शॉप्स के बाजू में ग्राहकों को ब्लैक टी और चाय वगैरह फरोख्त की जा रही है, जहां नाबालिग लड़के भी वहां बैठकर सिगरेट नौशी कर रहे हैं। इसकी तल्ला मिलने पर पुलिस ने पान शॉप्स के मालिकों को इंतबाह दिया कि वो नाबालिग बच्चों को सिगरेट फरोख्त न करें और न ही वहां बैठने दिया जाए। बसूरत दीगर पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बालापुर पुलिस की जानिब से बालापुर और उसके अतराफ के इलाके जात में चबूतरा मिशन चलाया गया। इस मौके पर रात के औकात में बेकार फिरने और चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर होटल्स, पान शॉप्स और मंदी के रेस्टोरेंट्स को भी निशाना बनाया गया। इंस्पेक्टर बालापुर पुलिस ने बताया कि मामूली बातों पर नौजवान हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जबकि चाकू अपने साथ रखने का भी फैशन बना लिया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि गांजा, शराब और दूसरा नशा करने वालों की भी काउंसलिंग की जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती असम्बली और कौंसिल का पीर से आगाज, नफरतंगेज बयानात के खिलाफ कानून का इम्कान। किसानों, बाशिंदों के मसाइल को पेश करने अपोजिशन की तहरीकात, KCR भी होंगे शरीक। कांग्रेस यौम तासीस, गांधी भवन में तकरीब का एहतमाम। मनरेगा को खत्म करने, गांधी जी के नाम को हटाने के खिलाफ अवामी तहरीक का ऐलान। पचासीवीं कुल हिंद सनती नुमाइश का
1 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे होगा आगाज। सनत व तिजारत, मईशत और हैदराबादी तहजीब की अक्कास नुमाइश में 1000 से ज्यादा स्टॉल्स। सख्त हिफाजती इंतजामात। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली के सरमाई इजलास को ज़ाब्ते की तकमील तक महदूद न किया जाए, अवामी मसाइल ज़ेर बहस लाएं, बीजेपी का मुतालबा। और रात के औकात में घूमने, चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। पान शॉप्स, रेस्टोरेंट्स की भी तलाशी। और नाज़रीन इसी के साथ 4 टीवी खबरनामे का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 टीवी न्यूज़। खुदा हाफिज।